Hello students, in the last lecture we discussed about transverse waves. Now in this lecture we will discuss about longitudinal waves. तो जो second type हमने discuss करे थे depending upon the vibration of particles when the wave is passing in the medium. So what are longitudinal waves? Those waves in which particles of medium vibrate about their mean positions along the direction of propagation of wave. So the waves in which particles medium vibrate about their mean positions along the direction of propagation wave are called longitudinal waves. So इसमें क्या होगा हमारे पास? Suppose wave is traveling from left to right side. इस तरफ जा रही है. Now the particles will start vibrating about their mean positions. ये को मान लो particle हमारे पास, it will vibrate to and fro about the mean position, but parallel to the direction of propagation of wave. Wave is moving from left to right. The particles, they will start vibrating about their mean positions along the direction of propagation of wave. So such motion is called, such waves are called longitudinal waves. Examples क्या हमारे पास? Sound waves in air, इसे हम कह सकते हैं waves in a spring when it is pulled backward and pushed forward continuously along its length. So these are few examples. अब बात देखें कैसे हो रही है हमारे पास. नोट कर लो आप प्लीज. Suppose you take a spring. एक स्प्रिंग है हमारे पास. ऐसे स्प्रिंग हमारे पास पड़ा है. सो द कॉइल्स, जो द टर्न्स हमारे पास आ रहे हैं, दे हैव ए डेफिनेट डिस्टेंस. सभी का खास डिस्टेंस है, आपस में दूर है. सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल पोजीशन. आप कोई पर्सन ऐसे करे, इस स्प्रिंग को पीछे खींचे, फिर आगे दबाए. दिस पोजीशन से कई बार आगे पुश कर दे, किसी बार बाहर आगे पीछे पुश करना शुरू कर दो आप इसको. तो व्हाट वुड हैपन? अगर पुश करो मान लो पहले, व्हाट वुड हैपन? देयर वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ दीज कॉइल्स हियर. ये पास पास आ जाएंगी. फिर पुश करेंगे तो विल सी दैट सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट वुड बी देयर. ऐसी अरेंजमेंट हमारे पास हो जाएगी. कई जगह पर स्प्रिंग की जो कॉइल्स हैं, दे बिकम क्लोजर दैन द मीन पोजीशन. इस पोजीशन से कम डिस्टेंस पर आ जाएंगी, पास पास ज़्यादा आ जाएंगी. कहीं पर ये ज़्यादा उससे ज़्यादा दूर चले जाएंगी. सो सच इन दिस वे द वेव इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. इन पोजीशंस को हम कहते हैं कंप्रेशंस. क्या हम कहते हैं? कंप्रेशन. इसमें सी से नोट कर दूं, इसमें कह दूं रेयरफेक्शन.
ये कंप्रेशन अगेन एंड दिस रेयरफेक्शन एंड सो ऑन. So what is C here? C stands for compression and R stands for rarefaction. It's also for condensation, but most usually commonly used word is compression and rarefaction. Another way of representing this, हम ऐसे भी represent कर सकते हैं इसको. मान लो हमारे पास वैसे तो पार्टिकल्स होते हैं, मान लिया ऐसी अरेंजमेंट हमारे पास है, तो दिस इज इलास्टिक अरेंजमेंट. इट मीन्स ये डिस्टेंस जो है, ये मीन पोजिशन डिस्टेंस है, इसके पास आप पुश करोगे तो इट विल बी रिपेल्ड बैक. ज़्यादा पास करोगे तो इट विल पुश बैक, खींचोगे तो इट विल ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी बैक. सो इलास्टिसिटी के कारण मान लो आपने इसको पुश कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो अरेंजमेंट वुड बी लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा हमारे पास. There are places where these come very close to each other. कुछ जगह ऐसी जहाँ पर ये नॉर्मल डिस्टेंस से भी दूर चले जाएंगी. ज़्यादा बड़ा शुरू कर दो, फिर हमारे पास ऐसे, फिर दूर दूर, फिर पास पास एंड सो ऑन. So the positions where, the regions where particles come closer than the mean position are called compressions. And the particles when get farther away from their mean positions, जो mean position का distance है उससे ज़्यादा distance हो जाए तो rarefaction बन जाता है, distance कम हो जाए तो हम compression कहते हैं. So these waves वो कैसे travel कर रही थी transverse, crest और trough बनते थे. यहाँ पर क्या बना हमारे पास, crests, condensations, compressions and rarefactions. तो बात करेंगे, आप ये नोट कर लो डायग्राम आप. These waves travel in the form of compressions and rarefactions. तो कंप्रेशन क्या है, the region in the medium where particles come closer, या particles are at distance lesser than the normal distance. ऐसे distance की फॉर्म में लिख सकते हैं आप. तो these the region in which in the medium where particles come at distance lesser than the normal distance. और rarefaction ये डेफिनेशन पहले नोट कर लिया आपने, इसी को हम रेयरफेक्शन में यूज कर सकते हैं. रेयरफेक्शन, the region where the particles region in the medium where particles come at distance greater than the normal distance. नॉर्मल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर आ जाए पार्टिकल्स, पास आ जाए तो हम कहते हैं कंप्रेशन बन चुका है. नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा दूर चले जाए पार्टिकल्स, हम कहते हैं रेयरफेक्शन हमारे पास आ चुका है. तो सेम उसमें क्रेस्ट और ट्रफ, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस. अब कंप्रेशन में डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा. व्हाट इज डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम.
इन ए गिवन वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम। सो जहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई है, पार्टिकल्स कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, डेंसिटी विल गेट इंक्रीज। तो कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है, अब डेंसिटी ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। रेयरफैक्शन में क्या हमारे पास डेंसिटी कम हो गई है तो प्रेशर भी क्या हमारे पास कम हो गया। अब इस हिसाब से सेम चलेगा हमारे पास, वेवलेंथ आ जाएगा वर्ड, जहाँ वेवलेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस between two successive या consecutive crest और ट्रफ्स, सॉरी इसमें ट्रफ्स नहीं, कंप्रेशंस आएंगे, कंप्रेशंस और सक्सेसिव रेयरफैक्शंस। आपकी चॉइस है, आप दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस नोट कर लो, आपकी चॉइस है दो रेयरफैक्शन का डिस्टेंस सेम ही आएगा। टू रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको लैम्डा से नोट करते हैं हम सेम। तो फ्रीक्वेंसी अगेन सेम डेफिनेशन, the number of waves crossing a point in medium, crossing a point in unit time is called frequency. Time period time to cross one wavelength is called टाइम पीरियड। और रिलेशन भी सेम हमारे पास, वो नंबर ऑफ वेव्स हैं क्रॉस कर रही हैं किसी खास पॉइंट को यूनिट टाइम में, तो सेम रिलेशन हमारे पास डेवलप हो जाएगा इसमें भी। न्यू क्या हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज इनवर्स ऑफ टी, और टी क्या है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन सेम हेयर, वेव वेलोसिटी the velocity with which a wave is traveling in a medium is called wave velocity। और रिलेशन भी सेम आ जाएगा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो बाकी बात सेम हमारे पास, सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस एंड पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब थोड़ा और इसे समझ लें हम, ये वेव मोशन कैसी है हमारे पास। एग्जाम्पल हम स्प्रिंग की ले रहे हैं। अभी स्प्रिंग था हमारे पास, ऐसे ऐसे हम वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो वी सी दैट कंप्रेशंस आर फॉर्म्ड, रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड, ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ रही है। तो किसी भी जगह पर आप देखोगे तो दिस पॉइंट, तो दिस पार्टिकल इज मूविंग
left and right about its mean position along the direction of wave. Disturbance कैसे जा रही है? Disturbance is traveling like this. तो ये फिक्स अगेन ख्याल रखो कि जहाँ पर ये पॉइंट है, अगर जहाँ पर अभी कंप्रेशन है, कुछ देर बाद जहाँ पर रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा, जहाँ रेयर फ्रैक्शन है कुछ देर बाद वहाँ कंप्रेशन बन जाएगा. Compressions and rarefactions are not fixed. They are traveling from left to right side. No particle is moving from left to side. Only energy is traveling from left to right. So compressions and rarefactions are moving like this. So again, what are the properties? इसमें क्या लग रहा हमारे पास? जब अपनी मी पोजीशन मान लो जहाँ पर था, इसे डिस्प्लेस कर दिया किसी ने, तो क्या होगा? Due to elasticity of the spring, it tries to come back to its mean position. वो वापस आ रहा है, but again it crosses the mean position due to inertia. Inertia के कारण वहाँ पर रुकेगा नहीं. ये स्प्रिंग जो है, ये पोर्शन था हमारे पास जो, it will cross the mean position. Again जब आगे चला जाएगा तो इलास्टिसिटी उसे पीछे खींचेगी. So due to this interplay of elasticity and inertia, this point will keep on moving. ये मूव हमारे पास कर रहा है, तो इसमें भी इलास्टिसिटी हमारे पास चाहिए. अब दोनों का डिफरेंस आ सकता है. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इनमें डिफरेंस बतलाओ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यूजुअली कम इन बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं. एक तरफ लिखते ट्रांसवर्स वेव्स, longitudinal waves. डिफरेंस, हाँ जी. फर्स्ट हम देखें, हाउ डू पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस. तो कैसे वाइब्रेट करते हैं? हियर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग in a direction at right angles to the propagation of wave. ये हम जानते हैं ना इस बात को. यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वेव्स के, पार्टिकल्स मीडियम के हैं, दे आर वाइब्रेटिंग perpendicular to the propagation of wave. On this side, here particles are propagating about their, इधर अब particle vibrating in a direction parallel to the propagation of, propagating same लिखना हम, in a direction parallel to the propagation of wave. एक बात होगी हमारे पास. सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारे पास? वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं. हेयर वेव्स आर ट्रांसफरिंग, waves are traveling in the form of compressions and rarefactions.
तो यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बन रहे हैं, इस तरफ कौन बन रहे हैं हमारे पास, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। एनी अदर पॉइंट? इलास्टिसिटी और इनर्शिया ये तो रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स जब बनती हैं तो वी रिक्वायर इलास्टिसिटी ऑफ द शेप और एन ओपन सरफेस। इट मीन्स दीज वेव्स कैन ट्रेवल ओनली इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, तो दीज डू नॉट ट्रेवल इन गैसेस। सो सिंपल, आप सिंपल फॉर्म में लिख लो, दीज ट्रेवल in solids and liquids but not in gases। सॉलिड्स और लिक्विड में ये वेव्स बनती हैं, गैसेस में ये वेव्स नहीं बनती। अगर वेव जा रही है तो पार्टिकल्स जो गैस के हैं उनमें इलास्टिसिटी ऑफ शेप भी नहीं होती, ना ही उनका कोई ओपन सरफेस है। सरफेस तो कोई है नहीं गैस का, जबकि लिक्विड है हमारे पास उसका कोई ना कोई ओपन सरफेस है। तो सरफेस को हम डिस्प्लेस करेंगे, इट विल ट्राई टू गेट बैक टू इट्स मीन पोजीशन। अब सिंपल लिख लो, इस तरफ क्या है, दीज ट्रेवल इन लिक्विड्स, इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये तीनों में बन सकती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और बात हमारे पास क्या है, जब जा रही है तो ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारे पास, प्रेशर कोई चेंज नहीं हो रहा। इस तरफ क्या है हमारे पास, प्रेशर चेंज हो रहा है, जबकि ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हो रही। तो सिंपल फॉर्म में लिखना हो, हियर प्रेशर डज नॉट चेंज when wave propagates, here pressure changes when wave propagate। तो यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं होता, इस तरफ हो रहा हमारे पास, डज नॉट चेंज, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इस तरफ प्रेशर क्या हो रहा है हमारे पास, चेंज हो रहा है। सो दीज आर फ्यू चेंजेस, फ्यू डिफरेंसेस विच कैन बी देयर, जो सिंपल हमने कर ली इसमें ना। एक तो वो कहना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के हिसाब से, एक हम प्रेशंस और एयर फ्रैक्शंस मारे हमारे पास, एक हम ये शो कर सकते हैं कि ये लिक्विड गैसेस मारा है, और वन इज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन प्रेशर। अब इसी को आप एक्सटेंड कर लेते हैं। हमने क्या देखा, जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी एग्जांपल कौन सी कॉमन थी, लाइट वेव्स, तो लाइट को हमने देख रहे थे। सिमिलरली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसकी कौन सी थी एग्जांपल, साउंड वेव्स। तो लेट अस डिस्कस अबाउट साउंड वेव्स। व्हाट इज साउंड एनर्जी? साउंड is a form of energy which produces in us a sensation of hearing। ऐसी एनर्जी है जिससे हमें सेंस प्रोड्यूसर, कौन सी, हेयरिंग, सुनने की सेंस हमें प्रोड्यूस करती है। दैट फॉर्म एनर्जी इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। अब ये कैसे बनती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज। जो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे पास। कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है, कोई कम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है ना। सो कंडीशन इस क्या, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडीज मस्ट बी देयर, वो कर रही है ना। और साउंड कैसी हो सकती है हमारे पास, साउंड, इट मीन साउंड क्या है हमारे पास, साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। पढ़ा हमने जूनियर क्लासेस में भी, इसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपिगेट करने के लिए। तो क्या इट मीन्स ये कौन सी वेव्स होगी हमारे पास, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। और अभी मैंने पढ़ना दिस कैन ट्रैवल इन गैसेस, तो गैसेस में कौन सी वेव कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो साउंड वेव्स के नाम से, साउंड वेव्स कौन सी हैं, आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ऐसी वेव्स हमारे पास हैं जो मैकेनिकल हैं और एयर में लॉन्गिट्यूडनल है हमारे पास। तो दीस आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कैसे बनती हैं, ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज। अब सभी तरह की साउंड हमें सुनाई नहीं दे सकती, उसकी हम बात कर लेते हैं अभी। sound waves in the frequency range कौन सी, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। मैं ऐसे लिख लो चाहे आप लिख लो 20 किलो हर्ट्स, दोनों का मीनिंग क्या हमारे पास सेम। ज़्यादा से 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। सो मैं 20,000 को छोड़कर मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 किलो हर्ट्स, मीनिंग समझिए, के स्टैंड्स फॉर किलो मीन्स 1000। साउंड वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज आर ऑडिबल, ये हम सुनाई दे सकते हैं हमें। ऑडिबल, तो साउंड वेव जो इस रेंज में है 20 हर्ट्स से अबव और 20 किलो हर्ट्स से कम, यही वेव्स हमारे कान सुन सकते हैं। मीन्स के बाहर हैं दैट इज नॉट इन द ऑडिबल रेंज, से हमारी ऑडिबल रेंज है। वेव्स विद फ्रीक्वेंसी लेसर देन 20 हर्ट्स आर नॉट ऑडिबल, ये हमें सुनाई नहीं देती। जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो 20 हर्ट्स से कम है हमें सुनाई नहीं देती है। हो सकता है कोई एनिमल्स सुनाई कर दे देती है उनको, हमें सुनाई नहीं दे रही। तो 20 हर्ट्स से कम साउंड है फ्रीक्वेंसी वाली आर नॉट ऑडिबल एंड आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक्स, इन्हें हम इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। दो साउंड वेव्स विच हैव फ्रीक्वेंसी लेसर दैन 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक्स। दूसरी तरफ बात कर लें, वेव्स विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन, यह भी हमें सुनाई नहीं देगी, 20 किलो हर्ट्स आर also not audible and are called अल्ट्रासोनिक्स। बैट्स वगैरह ना इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमें छोटी सी रेंज हमें दी है गॉड ने, इसके बीच में सुन सकते हैं। इसके जो बाहर साउंड है उसके लिए हमें कान काम नहीं कर रहे हैं।
इस रेंज से ज़्यादा है वो भी हमें सुनाई नहीं दे रही। तो इसी रेंज में हम बस हमारे जो ईयर्स हैं, हमारे कान हैं, दीस आर सेंसिटिव अबाउट दिस रेंज, बियॉन्ड दैट रेंज वी आर अनएबल टू हियर, राइट। तो साउंड वेव्स की अगर प्रॉपर्टी डिस्कस करनी हो तो कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, डिस्कस हमने कर लिया। क्या देखा हमने, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, दीज आर मैकेनिकल वेव्स। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, दे रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। जो मैकेनिकल वेव्स हैं हमारे पास, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, जिनको कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो क्या जो वैक्यूम में पास हो सकती है, तो ये भी क्लियर करने के लिए लिख लो, दिस कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दिस कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से पास नहीं करेंगी। और हमारे पास क्या है, these are longitudinal waves in air। जब एयर में पास करती हैं so these are longitudinal waves, so they travel in the form of crests and compressions and rarefactions, उसकी फॉर्म में जा रही है हमारे पास। और इसमें क्या हो सकता है, दे show phenomena of reflection, refraction and interference। ये रिफ्लेक्शन कर सकती हैं, रिफ्रैक्ट मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं विथ लिटिल चेंजेस, एंड इंटरफेयर, दो तरह की वेव्स आपस में इंटरफेयर भी कर सकती हैं। तो दीज फिनोमेना आर शोन बाय दीज वेव, साउंड वेव्स। और हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस दे ट्रैवल विद स्पीड, रियली हम कह सकते हैं जो कॉमनली यूज़ करते हैं 332 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 332 मीटर जा सकती है बरस। अगर टेम्परेचर चेंज करे तो देयर वुड बी चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, वो भी लिख सकते हैं हमारे पर जहाँ पर फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर there is an increase of 0.6 meter per second in speed। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमारे पास आ सकती है ना, इनको आप नोट कर लेना। और हम कह सकते हैं तो दीज वेव्स दे आर ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम, किसी मीडियम से पास कर रही हैं, तो नेचुरली दे विल डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम की प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाए तो इनकी स्पीड को भी डेफिनेटली वो क्या इफेक्ट करेंगी। सो लिख सकते हैं हम ऐसे, द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी। तो मटेरियल की कैसी डेंसिटी है वो भी इफेक्ट करेगी साउंड की स्पीड कितनी रहेगी उस मीडियम में। ज़्यादा लिखना हो तो एंड, अगर ज़्यादा रहे तो एक्स लिख दो, एंड इज
inversely proportional to square root of density. उसकी मीडियम की जो डेंसिटी है उसका स्क्वायर रूट लो, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मोर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड लेस इज द स्पीड ऑफ साउंड। और क्या स्पीड ऑफ साउंड, ये पॉइंट लिख लिया आपने, नोट कर लो प्लीज। यहीं पे और लिख सकते हैं हम 6। द स्पीड ऑफ साउंड इज इमीडिएट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। So these are few properties of sound waves. So sound wave बेसिकली क्या हमारे पास, ये किसकी एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव्स की, और ये कैसे ट्रेवल करती हैं, द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमने क्या देखा था, साउंड्स दे ट्रेवल इन ऑल काइंड ऑफ मीडियम, सॉलिड में भी जाती है, लिक्विड में भी जाती है, और दे आर आल्सो ट्रेवलिंग गैसेस। सो ये भी ऐड कर सकते हैं हम, the speed of sound is greatest या largest या is maximum in solids and is minimum in gases. So we सॉलिड लिख लिया आप, लिक्विड, गैस। तो ये बात बच्चों को पसंद नहीं आती है ना, बट इट इज़ ट्रू कि गैस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है हमारे पास, सॉलिड में। सो दीज वेव्स कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सभी में से ये पास कर सकती हैं। So these are few properties of sound waves. अब बात कर लेते हैं हम longitudinal waves, सॉरी light waves। अब लाइट वेव्स कैसी हैं, these are non-mechanical और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। है क्या लाइट, तो इससे पहले तो these are non-mechanical electromagnetics। और इससे पहले बात कर लें, व्हाट इज लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। वो एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने वाली सेंस प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज लाइट। वो लाइट वेव, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। तो लाइट वेव्स क्या है, दीस आर, सो लाइट वेव्स आर, ये नॉन मैकेनिकल है, अब हमने डिस्कस किया था। सो लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, so they do not require medium for their propagation. And so can travel in vacuum.
तो वैक्यूम से भी ये पास कर सकती है ना। सो दीज आर फ्यू डिस्कशन है ना प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स, इसको डिटेल में हम लिखते हैं बाद में। सो लाइट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। ये बात होगी, हमें पता है लाइट कौन सी वेव्स हैं, नॉन मैकेनिकल हैं। फर्दर और कौन सी ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, नॉन मैकेनिकल हैं, ट्रांसवर्स हैं हमारे पास। कैसे प्रोड्यूस होती हैं, लाइट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय oscillatory motion of a charged particle। वो कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, साउंड वाज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, जहां पर कौन सी हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है हमारे पास। ऑसिलेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे किस कैविटी में रख देते हैं चार्ज को, अगर वाइब्रेट करेगा दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। अब सभी प्रकार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। द EM waves, EM is electromagnetic waves in the range 4000 angstrom to 8000 angstrom। angstrom means नोट किया था आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, angstrom means 10⁻10 मीटर, नहीं किया तो नोट कर लो, याद आएगा दोबारा रिवीजन। 1 angstrom इट इज कॉल्ड angstrom। कितना होता है डिस्टेंस, 10⁻10 मीटर, इतना डिस्टेंस है हमारे पास angstrom। द EM waves in the range 4000 angstrom to 8000 angstrom are visible to us या ह्यूमन बीइंग, ये हमें विजिबल हैं। तो दिस रेंज इज कॉल्ड विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट है। द लाइट वेव्स बिलो having wavelength lesser than 4th angstrom are more energetic than visible light, and these are not visible to human eye. These are not visible। इसमें कौन से आती है हमारे पास, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज etc. fall in this range। Sorry। So ultraviolet, X-rays, gamma rays, they fall in this category। तो देखने में लग रहा है, हम नोट करेंगे नेक्स्ट, अगर जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतनी एनर्जी कम, जितनी वेवलेंथ कम उतनी एनर्जी ज़्यादा। सो वेवलेंथ एंड अभी आपने देखा ना लास्ट टाइम, व्हाट इज V, V इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन क्या फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या वेवलेंथ। तो एन लिखना हो हमारे पास, एन लिख, अभी हम वेवलेंथ की बात करें एन, तो क्या देखा हमने, अगर वी कांस्टेंट है तो लैम्डा और एन आपस में क्या कर रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी वेवलेंथ ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी कम, एंड वाइस वर्सा। तो जिनकी वेवलेंथ कम हो रही है उनकी
एनर्जी बढ़ रही है हमारे पास. सो दोज वेवलेंथ्स विच हैव लेसर those rays which have lesser wavelength than 4000 angstrom are more energetic and not visible to us, and they are very dangerous to us, है ना. दूसरी बात, द वेव्स, लाइट वेव्स हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर देन, नेक्स्ट पैसा देख लो पैरा, ग्रेटर देन 8000 angstrom आर लेसर एनर्जेटिक देन विजिबल लाइट. दीज आर आल्सो नॉट विजिबल. इसमें कौन सी आती है हमारे पास? इंफ्रासोनिक, सॉरी, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड रेस, रेडियो रेस एटसेट्रा fall in this range. अगेन हमारे पास एक स्मॉल विंडो है विच इज गिवन बाय नेचर टू अस. तो नेचर ने हमें ये स्मॉल विंडो दी है, इसी से हम दुनिया को देख पा रहे हैं. इससे जो काम वाली रेस हैं वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा. तो दिस इज़ वेरी स्मॉल विंडो विच इज़ गिवन टू अस. मान लो बड़ी सारी हमारे पास वॉल है, उसमें छोटी सी एक विंडो हमें दी है, इसी से हमें वर्ल्ड दिखाई दे रहा है. तो सिमिलरली स्मॉल विंडो इज गिवन टू अस फॉर हियरिंग. सुनने के लिए एक स्मॉल विंडो है. तो द नॉलेज इज वेरी वेरी लार्ज, बड़ा बियॉन्ड है हमारे पास. वो है ही नहीं सेंस जिससे हम सारा नॉलेज ऑब्टेन कर सकें. सो वी आर ट्राइंग हार्ड टू कन्वर्ट द नॉलेज विच इज़ अवेलेबल बियॉन्ड दिस रेंज. तो इस रेंज से जो बाहर का नॉलेज है उसे ऑब्टेन करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते हैं जो कन्वर्ट करके नॉलेज को हमें प्रेजेंट करें इन द विजिबल रीजन, जहाँ हमें समझ आ सके, या उस रेंज में जहाँ से हमें सुनाई दे सके. सो ऐसी कन्वर्शन चल रही है हमारे पास. सो लेट अस समराइज दिस बाय डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स. प्रॉपर्टीज इसकी कर रहे हैं हम. कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कौन सी वेव्स हैं? दीज आर नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. पहली बात होगी हमारे पास. कौन सी नेचर इसकी? दीज आर ट्रांसवर्स waves. It means that particles are they are vibrating perpendicular to direction of propagation of light. उसके perpendicular पास कर रहे हैं हमारे पास. और हमारे पास क्या है? These show phenomena of reflection, साउंड में भी होता था, refraction, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा. जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो ऑप्टिक्स, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. जो दिस फिनोमेना आर शोन बाय दैट. और क्या हो सकता है? डू दे डिपेंड अपॉन द मीडियम? यस, दे डू डिपेंड अपॉन द मीडियम. द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट depends on the medium. कैसे? The velocity is inversely proportional to refractive index. ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें भी हमारे पास मीडियम है. इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. फिलहाल आपके लिए द वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. और स्पीड कितनी हो सकती है? नेक्स्ट कोई पॉइंट डिस्कस करें हम स्पीड के बारे में. और द स्पीड ऑफ लाइट
इज मैक्सिमम, किस में होगी मैक्सिमम, इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। कई बार जहाँ वैक्यूम और एयर भी लिखा जाता है, बिकॉज एयर इज आल्सो वेरी रेयर है ना, उसमें काफ़ी डेंसिटी कम होती है, बट वी स्पेसिफिकली राइट हेयर वैक्यूम। एंड इज कितनी होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, सो नथिंग कैन मूव फास्टर दैन दिस। ये वो वेलोसिटी है जिससे ज़्यादा इस वर्ल्ड में कुछ भी मूव नहीं कर सकता। अब दोनों को कंपैरिजन देख लो साथ ही में थोड़ा सा। वैसे 3×8 मीटर पर सेकंड मीनिंग 3, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास है। ऐसे कर दें हम यहाँ पर, तो दिस बिकम्स किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर इट कैन ट्रैवल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। जबकि साउंड कितना कर रही थी हमारे पास, नियरली 332 मीटर पर सेकंड। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तभी आप कहते हैं ना, जब यहाँ पर बादल गरजते हैं तो क्या होता है, हमें पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में हमें साउंड सुनाई दे रही है। सो द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम वैक्यूम, इसकी स्पीड हमारे पास इतनी आ चुकी है हमारे पास। So further, what can be said about that? These can also show total internal reflections and other phenomena are also there, but these are the major properties which we have discussed here. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कि वेव्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स 2 थी मेन बड़ी, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। उसके बाद शुरू कर दिया हमने ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें फिर दोनों की एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या बेस्ट एग्जांपल है, साउंड वेव्स, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया हमने। लाइट ट्रांसवर्स वेव की कौन सी है हमारे पास, लाइट वेव्स, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें देखेंगे हम पीरियोडिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, उसका रिलेशन क्या बनता है वेव से, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।